we are pleased to have the experts with us in today's session. For as far as the topic of the session is concerned, once known as poor man's food, millets have now emerged as an important item in the menu of the rich. They are now known as super grains for the huge health, economic and environmental benefits that they offer. The demand for millets in the recent past has been growing, mainly due to its ability to combat modern lifestyle diseases. There is also an increasing awareness on the health and nutritional benefits of consuming millets. The United Nations, the government, fitness experts, startups, FMCG giants, and almost everyone who is health conscious is talking of millets. The government of India is also promoting millets aggressively. In 2018, millets were declared nutri-cereals and added to the National Food Security Mission. Rupees 300 crore was earmarked for its development. The United Nations declared 2023 as the International Year of Millets after a recommendation from the Indian government in the year 2019. The millet industry stands at the cusp of significant development. Ragi and bajra breads are redefining bakery racks, supplying a gluten-free alternative to traditional wheat. From shelf-secure bajra flour to multigrain drink mix, the variety of products mirrors the dynamic nature of this industry. For entrepreneurs, the trick to success will lie in the capability to innovate, maintain high quality, and enlighten the customers. Millets offer a pathway for entrepreneurs and startups to create impactful businesses that resonate with modern consumer values while being rooted in traditional agricultural practices. So let us start the discussion. And I would request Dr. Banwari to let us first know what are millets, since we are going to talk about startup opportunities in the millet sector and why there is so much of discussion about millets and why they are being so promoted, so largely being promoted. Thank you, Dr. Sujata. Like you rightly said, there is a lot of focus on millets by government also, by fitness experts also. In fact, they are also called as nutri-cereals, like you rightly pointed out. उन्हें श्री अन्न भी कहा जाता है. क्या कारण है, क्या रीज़न है, मिलेट्स इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. आज की शुरुआत इसी से करते हैं. मिलेट्स, जिसको एक ग्रास वैरायटी का पार्ट भी कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है, उनमें एक्सेप्शनल न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है. एनवायरनमेंट के साथ साथ अच्छा होने के साथ साथ वो इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिशियल है. दे रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर टू ग्रो. इनफैक्ट अगर हम राइस से कंपेयर करें तो 70% तक लेस वाटर कंज्यूम करते हैं मिलेट्स. हार्डली ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं. ड्रॉट रेजिस्टेंट एरिया में भी मिलेट्स यूज किए जा सकते हैं. इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स में पेस्ट नहीं अट्रैक्ट करते, चीपर टू ग्रो है. वीट से अगर हम कंपैरिजन करें तो हाफ से ज्यादा कम टाइम में ये ग्रो हो जाते हैं. इसके अलावा दे आर वेरी गुड फॉर कंज्यूमर्स. अब इनको इतनी अटेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि लोग रियलाइज कर रहे हैं कि इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. अगर हम मिलेट्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं. कई सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है. सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए या नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं, प्लैनेट के लिए भी मिलेट्स बहुत अच्छे हैं. वाटर फुटप्रिंट कम है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, एनर्जी एफिशिएंट क्रॉप्स हैं, फर्टिलाइजर भी कम लगता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट की भी रिक्वायरमेंट कम से कम है. तो इस वजह से मिलेट्स न सिर्फ कंज्यूमर के लिए बल्कि प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा है. और अगर हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन है, रिसोर्स एफिशिएंट है, क्लाइमेट रेजिलियंस है. कभी क्लाइमेट खराब भी हो, पानी कम भी हो, बारिश कम भी हो, लैंड बहुत हार्ड भी है, तब भी मिलेट्स को ग्रो करना बहुत आसान है. इसीलिए मिलेट्स इतना पॉपुलर हो रहे हैं. गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा फोकस मिलेट्स पे कर रही है. हम आएंगे आगे कि मिलेट्स को इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है, लेकिन एक बार हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप के मिलेट्स अवेलेबल हैं. जैसे मेजर मिलेट्स में आ जाता है ज्वार, बाजरा, रागी. आप सबने ये नाम सुने ही होंगे क्योंकि ये
सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमनली कंज्यूम्ड मिलेट्स हैं। इसके अलावा कुछ कम पॉपुलर मिलेट्स हैं जिनको हम माइनर मिलेट्स भी कहते हैं, जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट, कोदो मिलेट, सामा के राइस हम लोग व्रत में खाते हैं, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। इसके अलावा कुछ मिलेट्स हैं जिनको हम सूडो मिलेट कहते हैं, क्योंकि ये और छोटे ग्रेन्स हैं और बहुत ही स्मॉल सीड ग्रास फैमिली का पार्ट है, जैसे कि अमरंथ, जिसको हम राजगिरा भी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग इसको व्रत में लड्डू के फॉर्म में खाते हैं। कुट्टू, बकव्हीट फ्लावर जिसको हम कहते हैं, ये भी व्रत में हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो ये अगर मैं मिलेट्स की बात करूं तो मिलेट्स इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट, लोगों के लिए, सभी के लिए एफिशिएंट है, और ये अलग अलग वैरायटी है मिलेट्स की। जैसे ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 वाज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कुछ गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए और यूएन ने कैसे उसको डिक्लेयर बिल्कुल, आपको जान के ये हैरानी होगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जितने भी क्रॉप ग्रो किए जाते थे उनमें 40% मिलेट्स होते थे, लेकिन ओवर द इयर्स वो कम होता गया और आज की तारीख में केवल 20% क्रॉप एरिया मिलेट्स को डेडिकेटेड है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम मिलेट्स को भूल गए? कारण ये रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद राइस, व्हीट इतना ग्रो हो गए, लोगों ने उसको ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अगर आप राशन की बात करें, राशन में भी व्हीट, राइस, यही ग्रेन्स मिलते थे। तो धीरे धीरे लोगों की कंजम्पशन और फूड क्रॉप एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम होता गया, क्योंकि सब्सिडीज नहीं मिल रही थी। अब 2018 में हमने ये रियलाइज किया कि हम फूड डेफिशिएंट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री तो बन गए, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। हमारी बहुत सारी स्टडीज ने हमें बताया कि हमारे पास आज फूड सरप्लस है, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं, ओबेसिटी रेट बढ़ता जा रहा है। तो उस समय ये रियलाइज किया गया कि फूड सिक्योरिटी मिशन में हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब आपको मिलेट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 2018 में हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया, और जैसे आपने बताया उस समय गवर्नमेंट ने काफ़ी मोटे फंड्स मिलेट प्रमोशन, मिलेट डेवलपमेंट के लिए भी खर्च किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। अगर हम मिलेट्स को प्रमोट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग मिलेट्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, तो ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी और यूएन ने माना भी, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया। और इसी 2023 में गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया मिलेट्स प्रमोशन में। मिलेट्स प्रमोशन सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं, बल्कि फार्मर्स को सब्सिडीज देने के लिए, और जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं मिलेट्स के एरिया में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एरिया में, उनको भी सब्सिडीज, ग्रांट्स, बेनिफिट्स, फंड्स देकर। तो इस तरह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स प्रमोशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हमने डॉक्टर बनवारी से जाना कि मिलेट्स क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ये बेनिफिशियल हैं इंडिविजुअल्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए, और क्यों इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। बट अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो स्टार्टअप्स पिक्चर में कहाँ से आए, वाई स्टार्टअप्स आर इम्पोर्टेंट? डॉक्टर शर्मा, विल यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस एस्पेक्ट? यस प्लीज। इनफैक्ट डॉक्टर बनवारी ने जो बताया कि पहले 40% लगभग ये मिलेट्स प्रोडक्शन होता था ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया, और फिर अब ये हुआ कि राइस एंड व्हीट बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, और फिर लोगों ने देखा कि उसका नुकसान कितना हो रहा है। पर्टिकुलरली अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या उनके प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो हमें वाटर कंजम्पशन की बात है या फर्टिलाइजर्स की बात है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये तो एक नाउ वेल डिसाइडेड है कि देयर इज ए नीड ऑफ प्रमोशन ऑफ मिलेट्स। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन होगा कैसे? प्रमोशन तो हम और आप सब मिलकर ही करेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मिलेट्स के साथ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमेशा रहा था, जैसे आपने दोनों ने कहा कि एक पुअर मैन्स फूड काइंड ऑफ एक इनके साथ में एक टैग लगा हुआ है। तो अब जो स्टार्टअप्स हैं, कमिंग स्टार्टअप्स हैं, जिनके साथ में एक चैलेंज ये है कि उन्हें ये टैग को खत्म करने की जरूरत है। They'll have to do some value addition,
कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे सो दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। और उसके लिए केवल प्रोडक्ट्स की लिए जरूरत नहीं है, जरूरत ये भी है हाउ वी आर एनकरेजिंग द पीपल टुवर्ड्स इट, हाउ वी आर creating kind of awareness among the people towards the millet based products। ये सब कुछ बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें ये सोचने की जरूरत है कि स्टार्टअप ही एक ऐसा साधन है या एंटरप्रेन्योरशिप भी एक ऐसा साधन है जो कि लोगों तक, मास लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बनेगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वील हैव टू थिंक फॉर द इनोवेटिव वेज ऑफ marketing, innovative ways of value addition, innovative products and whatever drawbacks are with the millets, उनको कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। और ये अगर इस तरीके से अगर हम करते हैं तो स्टार्टअप को प्रमोशन मिलेगा। और चूंकि आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस बोथ आर नाउ एनकरेजिंग द मिलेट एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, सो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी to go towards the innovation and a startup in the field of millets and millet based products। ये तो आपने सही कहा, क्योंकि इनका जो स्कोप है वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जाता है अगर प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे और उस लेवल के होंगे। डॉक्टर शर्मा, थोड़ा सा हमें और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हमें और बताइए कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं रिलेटेड टू द यूज ऑफ मिलेट्स, हाउ दे कैन लीड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इंडिया, इफ वी गो बाय द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दे विल हेल्प अस लॉट इन डेवलपिंग दिस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इन द फील्ड ऑफ मिलेट्स एंड मिलेट प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं जो कि मिलेट्स को यूज करके, चाहे हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि एक जो पुराने समय में जो हम गेहूं का आटा न खा करके हम एक मिक्स्ड मल्टीग्रेन फूड यूज करते थे, और उसमें क्या होता था, कहीं ना कहीं जौ की बात करते हैं, बाजरा की बात करते हैं या दूसरे इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिक्स करके करते थे। और वो जो प्रैक्टिसेस हैं दे वर नॉट ओनली हेल्दी बट दे वर आई थिंक इकोनॉमिकल ऑल्सो, फाइनेंशियली अगर हम देखेंगे तो दे वर वेरी पॉकेट फ्रेंडली फॉर द पीपल। और इस तरीके की जो प्रैक्टिसेज हैं, चाहे हम अपने खाने में देखें या हम अपने और दूसरे तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने कहा कि जब हम ये व्रत में जो सवा की चावल खाते हैं या उस तरीके के जो लड्डू जो बनते हैं, दैट वाज दी प्रैक्टिस। और अब क्या हो रहा है कि उन्हीं चीजों को लेकर के नाउ मेनी ऑफ द यूथ आर कमिंग अप विद आइडियाज और उन पे बेस्ड प्रोडक्ट जो स्टार्टअप से इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो जो उस तरीके के लड्डू हैं अगर उनको और न्यूट्रिशियस वैल्यू ऐड करके, सम वैल्यू एडिशन करके एंड प्रॉपर पैकेजिंग करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दे आर हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दोज, पर्टिकुलरली हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दोज, तो उसका फर्क पड़ रहा है। पीपल आर नाउ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द मिलेट एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। जैसे हम देख रहे हैं आटा चक्की का भी हम घरों में मिल रहे हैं और उसी का प्रारूप मिल रहा है। हाँ, ये तो एक ऐसी प्रैक्टिस है, मैंने अभी रिसेंटली एक कहीं ऐड देखा था, फुल पेज न्यूज़पेपर में ऐड था कि वहाँ क्या कह रहे हैं कि वो हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा, दैट इज अवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा मिलेट्स से संबंधित नहीं है, लेकिन वो अगर हम मिलेट्स को भी यूज करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ हम देखेंगे कि जो मशीन से अगर हम आटा तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज का, न्यूट्रिशियस वैल्यूज का लॉस भी होता है। और अगर हम उसमें हाथ की चक्की से कह रहे हैं, अगर आटा बना रहे हैं तो उसमें एक तो स्पीड उसकी कम है, बहुत सारी वैल्यूज हैं उसके साथ में, और उसको एक स्टार्टअप के रूप में कुछ लोगों ने लिया हुआ है। एंड इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि अल्टीमेटली नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ मिलेट्स एंड दिस फूड प्रोसेसिंग, बाकी एरियाज में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है उसकी तरफ में आ रहे हैं। नाउ द पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग द importance of these all benefits of these all things। और वही बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस अगर हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की, जो गांवों में जिस तरीके से हमारा मिलेट्स का कंजम्पशन था पहले, बहुत अभी भी बहुत एरियाज में है, लेकिन हम वही बात अगेन आ जाती है कि पुअर मैंस एक ग्रेन का एक इस पर टैग लगा दिया, दैट हैज बीन अ वेरी हार्मफुल थिंग। लेकिन देर से ही सही, लेकिन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है।
Government of India is promoting the startup and innovation, and there is a now lot of scope for innovation in startup. जिसमें आगे हम बात करेंगे क्या क्या एरियाज हैं जहाँ जहाँ स्टार्टअप्स क्रिएट किए जा सकते हैं. जी बिल्कुल, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी. जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली भी मिलेट्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है. अगर हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें स्टार्टअप्स के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में $12.33 बिलियन डिमांड थी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स की, और ये मार्केट साइज 2028 तक 16.27 बिलियन हो जाएगा. अब ये तो है वर्ल्ड मार्केट की बात. इंडिया के लिए क्या पोटेंशियल है, इंडिया के लिए क्या स्कोप है? इंडिया इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स. पूरे वर्ल्ड का 19% मिलेट प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है. और अगर हम यहाँ पे स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज को यूज करके इस मार्केट को टैप कर पाए, जो बढ़ता हुआ मार्केट शेयर है, तो हम न सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, एक इंडिविजुअल के लिए तो होगा ही बेनिफिट. तो जो जरूरत लगती है वो है कि गैप एरियाज या डिमांड जो है हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करने की. गैप एरिया से ज्यादा अवेयरनेस है. बट बिकॉज जो जनरेशन पहले मिलेट्स का यूज जानती थी, बेनिफिट जानती थी, वो तो जनरेशन अभी नहीं है. जो इस समय की जो जनरेशन है उसको सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स एंड मिलेट प्रोडक्ट. और वो फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उससे जो आप बात कर रहे हैं कि अभी जो उसका डिमांड बढ़ गई है या लोग वर्ल्ड ओवर उसको मांगने लगे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज ऑल इनिशिएटिव्स के लोगों को उसके प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स को बताया जा रहा है, उसका क्या क्या और जो बेनिफिट लाइफ स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं. क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने सारे डिजीजेज हैं, चाहे वो डायबिटीज की बात करिए या आप ब्लड प्रेशर की बात करिए या और कई सारे डिसीज हैं जो कि केवल उन ग्रेन्स की वजह से हो रहे हैं जो जिनकी बात रिप्लेसमेंट एज ए मिलेट आ रहा है. तो अगर हम देखें कि बहुत सारे केसेस में डॉक्टर्स भी और पर्टिकुलरली जो नेचुरोपैथी वाले नेचुरल तरीके से अपना इलाज करना चाहते हैं, दे आर नाउ रिकमेंडिंग कि यू गो फॉर द मिलेट्स एंड पीपल आर नाउ हैप्पीली गोइंग फॉर दैट. अब उनको ये नहीं लग रहा है कि ये बाजरा मैं क्यों खाऊंगा. हाँ ठीक है, उसका थोड़ा खाने में लगता है, टेस्ट कम लगता है. अब जरूरत उन्हीं एरियाज में है, जरूरत इनोवेशन की, कि आपको टेस्ट भी आप उसका अच्छा बना पाए और लोगों को उसके प्रति अट्रैक्ट भी कर पाए. कुछ हेल्दी फूड बना पाए, हेल्दी फूड बनाए जा रहे हैं बहुत सारे. टेस्टी जहां लोग रिलेट कर सकें. हाँ, सबसे बड़ी वही चीज है कि एक तो हेल्दी भी हो और लोगों को लगे कि भी हाँ इसको खाने में मुझे कोई परहेज नहीं है, वाला आई शुड गो फॉर दैट. तो इसमें क्या क्या स्टार्टअप्स पॉसिबल हैं? आप दोनों इसके बारे में बताइए कि मिलेट्स के एरिया में व्हाट स्टार्टअप्स कैन बी पॉसिबल, व्हाट आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इनोवेशन आल्सो. देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अगर हम इनोवेटिव मिलेट बेस्ड स्नैक्स की बात कर सकते हैं, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि बिल्कुल ठीक, लोग मिलेट्स खाना चाहते हैं लेकिन एक तो उनको मुश्किल लगता है बनाना, दूसरा उन्हें टेस्ट नहीं आता. उन्हें जो अपने ग्रेन्स, वीट, राइस, जो भी वीट राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वही अच्छे लगते हैं. इसको हम इकोनॉमिक्स में स्टेटस को बायस भी कहते हैं. लोग नई चीज के लिए उतना रेडी नहीं रहते. तो अगर हम कुछ मिलेट्स को यूज करके चिप्स, बार्स, कुकीज बना सकें जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स खरीद सकें, एटलीस्ट मिलेट्स की तरफ बढ़ सकें. उसके अलावा बेवरेजेस, आजकल मिलेट बेस्ड मिल्क हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, स्मूदीज है, हेल्थ फिटनेस प्रोडक्ट्स हैं जो मिलेट के बेस पे बनाए जा सकते हैं, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स ला सकते हैं. उसके बाद फूड सर्विस एंड रेस्टोरेंट स्टार्टअप एक बहुत अच्छा आइडिया, एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है. इस चीज़ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. पीछे हैदराबाद में मैंने एक मिलेट बेस्ड रेस्टोरेंट में मेरा जाने का मौका हुआ. मैंने उनका प्रोडक्ट्स ट्राई किए जिसको मिलेट मार्वल के नाम से जाना जाता है. वहाँ पे वो केवल मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स सर्व करते हैं. उन्होंने अपना फर्स्ट आउटलेट अपोलो हॉस्पिटल में स्टार्ट किया ताकि जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या कोई डिजीज से उनको मिलेट्स पे शिफ्ट करना है वो यूज कर सकें. और बहुत ही अच्छा चल रहा है वो स्टार्टअप, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है. लेकिन उसके बाद मैंने देखने की कोशिश की कि क्या हैदराबाद के अलावा और सिटीज में भी ऐसे मिलेट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं. तो मुझे लगा बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है मिलेट बेस्ड रेस्टोरेंट्स का. उसके अलावा फूड सर्विस स्टार्टअप्स हैदराबाद में मैंने नोटिस किया कि कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं
एक ऐसा स्टार्टअप है जो टिफिन सर्विस प्रोवाइड करता है, ओनली मिलेट बेस्ड, ताकि जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सके, उनको कन्वीनियंस भी मिल सके। तो हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, प्रोडक्ट यूटिलिटी नहीं बेचनी, हमें कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करनी है। क्योंकि जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो लोग मिलेट्स खाना चाहते हैं लेकिन मिलेट्स पे शिफ्ट नहीं हुए, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि टाइम नहीं है बनाने का। तो मेरे हिसाब से आप इसमें ऐड करें। इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए अभी मैं देख रहा था कहीं रिपोर्ट, लगभग 1000 स्टार्टअप्स आर ओनली बेस्ड ऑन मिलेट एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स इंडिया में। तो जो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, बिकॉज इनिशियली व्हेन देयर वाज नो डिमांड फॉर द मिलेट्स एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, अब क्या हो रहा है कि लोगों का बहुत रुझान आ रहा है इसकी तरफ में, एंड दैट रीजन इज बिकॉज दैट यू हाईलाइटेड द न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ मिलेट्स। अगर हम इसकी बात करें कि डिफरेंट एरिया जहाँ जहाँ स्टार्टअप्स इनोवेशन पॉसिबल है, आई वुड लाइक टू हाईलाइट। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मिलेट्स का जो हम एक छिलका होता है या इस तरीके का जो उनका कवर है, उसको प्रोसेसिंग में किस तरीके से हम उनको सेपरेट कर पाएं और इम्प्रूवमेंट इन डिह्यूलिंग द एफिशिएंसी एंड सेपरेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां स्टार्टअप या इनोवेशन की जरूरत है। बिकॉज ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग दीज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, बट जैसी जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी एंड देयर इज ए वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द पीपल, तो हमें उसका प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट इट इज नॉट लुकिंग डिफरेंटली और ऑकवर्ड। सो दैट इज अ वन एरिया वेयर इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। अनदर एरिया that is very much important, that is the value addition in the products, millet based products, because if we go by the traditional products only, then people will not accept it. We will have to go for the value addition so that it is meeting their requirement, meeting their suitability on those things. Another area of innovation in this millet field is the that millet based product development that you have very well highlighted. Different kind of cookies are being prepared, बिस्किट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, एंड नाउ जब हम मैगी की बात करते हैं, इंस्टेंट कुकिंग, तो उस केस में जब नूडल्स आर आल्सो बीइंग मेड बाय यूजिंग द मिलेट्स, ready to eat, ready to cook, because if you are providing this kind of things available, then people will certainly come, because आपने convenience की जो बात करी है, that is very important. People would not like to go कि मुझे ये सब कुछ तैयार करना है, बनाना है, then only I will go. अभी क्या लोग क्या चाहते हैं कि दे वांट एवरीथिंग तैयार मिल जाए, रेडीली अवेलेबल हो, रेडी टू ईट हो, विद फैक्ट कुकिंग की भी जरूरत नहीं हो, दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इफ यू आर मेकिंग, सो दैट इज अ वन एरिया वेयर वेरी लॉट ऑफ स्कोप इज देयर फॉर इनोवेशन इन स्टार्टअप. अनदर इंपॉर्टेंट इज द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ मीटिंग द डिमांड ऑफ सो मेनी पीपल वर्ल्ड ओवर, then we cannot go by the traditional or the mechanical ways of things. We will have to automate the things, and we will have to find out the new and better technologies for processing purpose. And another area of innovation in startup is in case of millet, that is improving the shelf life, because when we are thinking of ready to eat or ready to cook kind of food, then we will have to think of the shelf life of these millet based products also, where a lot of innovation is required. We'll have to find not using these kind of preservatives or something. It should have natural shelf life. What kind of initiative, what kind of innovations are required, that we'll have to think. Another area that is what you highlighted in case of therapeutic use, we can say many people who are in suffering from lifestyle diseases, they require this kind of products. So therapeutic products or therapies kind of thing, that is the area where innovation and startup could be established. Packaging and branding is also very important, because when you prepare any food product, if it is a packaging is not good, then people will not be attracted towards it. So, and because this is a challenge for the millets, we'll have to make it available to the people. So packaging and branding is also very important. And because now technology is being used, a lot of technology is being used for that purpose, AI, ML, blockchain, these all things will have to be used for that purpose, because we want to reach out to the people, we want to use the latest technologies, we want to provide the quality products, these all things. For that purpose, latest technology like AI, etc. has to be used.
Absolutely. In fact, I want to add one more thing. When we adapt to latest technology in millet production and providing millet-based products, it will help us in lowering down the cost also. Yes. Because now we have seen, if you go to market and buy a millet-based snack, it will be much more expensive than a same snack of rice and wheat. So here, one more innovation which is required is, along with packaging, along with taste, we will also have to see how we can have some cost reduction. So Yes. I think that's also one area where innovation is required. Certainly. Cost So- reduction is also very important because Yes. unless we make it that pocket friendly, then it will not be. Yes. So Serving when we it. look at the millet industry, there is a scope in the millet primary processing unit. There is scope for seed entrepreneurs. There is scope for aggregators, उसके लिए स्टोर हाउस वेयर हाउस चाहिए होगा. फिर सुपरमार्केट और रिटेल इंडस्ट्री से कनेक्शन, सब डिमांड सप्लाई चेन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे स्कोप है. In fact, बेकरी इंडस्ट्री में स्कोप है. And hotel industry, you have already told us that hotel industry, and when we see even e-commerce online platforms need to be developed for In fact, direct regarding this online selling platform, of products. yes, so I think we can discuss it further. Yeah, later on. we will take a short break now, and we will be again together after a short while. We welcome you after this break to the 10th episode of the Udyamita Ki Or series, episode on entrepreneurship opportunities in millets. So, taking the discussion forward, we were talking about areas जहाँ पर कि startup opportunities exist करती हैं millets के sector में. So, would you like to add something to it? Yes, in fact, I was talking about the technological use in the field of millet products. चाहे जिसके बारे में बात कर रहे थे कि हम इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द एफिशिएंसी बट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बिकॉज जब हम ये सोचते हैं कि विल हैव टू मेक इट अवेलेबल टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो वहाँ कॉस्ट भी एक बहुत मैटर करेगा. कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है. एंड दिस टेक्नोलॉजी यूज ऑफ AI, ML एंड दिस ब्लॉकचेन एटसेट्रा, दैट विल हेल्प अस. एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द फील्ड लेवल विद द फार्मर्स. अब फार्मर है, कंज्यूमर है. नाउ द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज हाउ टू मेक द थिंग्स अवेलेबल फ्रॉम फार्मर टू द कंज्यूमर. चाहे हम तक, आप तक की बात करें, या हम रेस्टोरेंट की बात करें, या जहाँ भी उसकी प्रोसेसिंग हो रही है. सो दैट इज इस एरिया वेयर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंड स्टार्टअप पॉसिबिलिटीज आर देयर कि किस तरीके से उसको करें. यू हाईलाइटेड वेरी वेल कि क्या हम कुछ ऑनलाइन ऐप्स की बात कर सकते हैं, ई-कॉमर्स की बात कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं, सो दैट वेयर एवर द मिलेट रॉ मटेरियल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और वो कहाँ तक जरूरत है वहाँ तक जाए. उसके लिए एक एरिया, एक स्टार्टअप का बहुत इंपॉर्टेंट है. अनदर एरिया इज बिकॉज ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 years वी हैव सीन दैट वेरी गुड नंबर ऑफ पीपल आर coming towards the millets because of many reasons, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हों, या बिकॉज ऑफ दिस पब्लिसिटी, या जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उसकी वजह से. बट स्टिल देयर इज ए नीड ऑफ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड हाईलाइटिंग the nutritious values and the benefits of the millets and millet product. उस फील्ड में I would like to say कि exclusively on that field startups are required, because the startups which are creating a kind of awareness and motivating the people, encouraging the people towards the millet and millet product, that will help in further enhancing this mission. So that is very much important, and that will not only create awareness, but I think that will be required to change the mindset of the people, because perception of people is different towards the millets. So this kind of programs that will help in changing the mindset of people. Even वो बहुत millet-based जरूरी. events and festivals are being Yes. organized. Even Those food festivals, millet-based. events, and also highlighting why I should go for that millet-based product, and particularly different kind of products अगर हम बना रहे हैं तो उनमें हम देखेंगे मुझे कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है, आपके लिए कौन सा सुटेबल है, एज पर रिक्वायर्ड. whereas in case of wheat and rice ऐसे suitability नहीं है. आप ये देखेंगे when you go into the details of the nutritious value of these all ingredients,
देन यू विल फाइंड कि बाजरा कहीं जगह किसी के लिए सूटेबल है और कहीं रागी किसी के लिए सूटेबल है. So that need to be highlighted, that need to be that publicized. और शायद उसके लिए इसी स्टार्टअप की- की बहुत जरूरत है. इसी की वजह से इसमें इनोवेशन का भी बहुत स्कोप बहुत है स्कोप है, बहुत कि स्कोप. आपको वो क्रिएटिविटी और इनोवेटिव बेंट लगाना पड़ेगा, यूज करके कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे प्रोसेसिंग में हो, चाहे स्टोर हाउसेस में हो, चाहे उसको कंज्यूमर तक ले जाने में हो. देखिए, इसमें एक मैं एग्जांपल दूंगा कि नूडल्स की बात करते हैं. पहले मैदा की नूडल्स थी, जी बट धीरे धीरे ये रिकॉग्नाइज करने लगे लोगों को महसूस होने लगा मैदा इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ. तो वहाँ आटे के नूडल्स आने लगे. एंड पीपल आर नाउ डिमांडिंग फॉर द आटा नूडल्स एंड दे आर वेरी मच इन मार्केट. या बहुत सेल है उनकी. उसकी मैदा की वजह ज्यादा, मैदा वाली देखने में अच्छी लगती है लेकिन आटे वाली दे आर न्यूट्रिशियस हेल्दी, इसलिए उनकी डिमांड है. लोग जाकर के कहते हैं. सेम इज द केस विद द ब्रेड ऑल्सो. अगर हम उसी तरीके की ब्रेड जो है इन मिलेट्स के साथ बनाते हैं, नूडल्स इन मिलेट्स के साथ बनाते हैं, अगर हम दलिया मिलेट्स के साथ बनाते हैं, देन आई थिंक पीपल विल गो फॉर दैट एंड दे आर गोइंग, दे आर नाउ डिमांडिंग. मार्केट में जाकर के उसकी डिमांड कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या है अभी? कॉस्ट फैक्टर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम. एंड सेकेंडली इजिली अवेलेबिलिटी, बिकॉज अभी इस तरीके का प्रोडक्ट्स जो है इजिली अवेलेबल नहीं है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज मैं आपको कहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने की जरूरत है. बिकॉज मिलेट्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दी विलेजेस, इन दी रूरल एरियाज. और अगर वहां से अगर उसको ला करके हम प्रोसेसिंग करते हैं शहरों में, देन कॉस्ट फैक्टर विल बी एडेड देयर. एंड इफ दे आर प्रोसेस्ड एंड मेड eatable there only, then I think it will be cost effective also. If the production And units secondly- are there itself in the And villages. secondly ये क्या होगा कि वहाँ के लोगों को they will get the employment opportunities also. And they will, when they will get employment, then certainly they will be encouraged to grow more and more millets in that case. Right. I think, do we have some call? And another thing very important. अच्छा call है तो let us I think take a call. Yes, come up please. हाँ, अपनी बात कहिए. कौन है कॉल पे? जी ध्रुवेन हूँ सर. हाँ ध्रुवेन, बताइए. ध्रुवेन is our student and I would like to tell you all that he is also trying to produce very innovative products using the millets. And Dhruven is with us. Dhruven, tell us about your what kind of innovations you have taken. Sir, I have been trying to preparing a multi-millet flour, which is based out of mixing 5 millet flour and making it into one. उससे जो न्यूट्रल टेस्ट अचीव करना होता है हमें वो आता है. हाँ ठीक है. और बताइए उसमें क्या, क्यों लोग आपके फूड की तरफ में जाएंगे, क्या खास है उसमें? जैसे कि हम ऑल पर्पज फ्लोर यूज करते हैं मैदा, उसमें टेस्ट नहीं होता है, तो हम उसमें अगर मीठा डालते हैं तो मीठा हो जाता है, या बेकरी में खट्टा होता है तो खट्टा हो जाता है. वैसे ही मैंने ये बनाया है जो कलर में भी व्हाइट है और वो बेकरीज में, अदर प्रोडक्ट्स में, पाव में, सब जगह यूज हो सकता है. एक बात खास नोटिस की ना, कलर में भी व्हाइट है. मतलब he has tried to catch the nerve of the people. क्योंकि लोग देखते हैं कि उस तरीके देखने में उस तरीके की हो. And he is trying to address that problem. Yes please. हाँ आगे और बताइए. कुछ लोगों का डिमांड है इसमें, क्या है? जी बहुत डिमांड है. रेस्पॉन्स क्या है, किस तरीके का है? क्या सर? क्या रेस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है? नहीं, फीडबैक तो बहुत अच्छा है क्योंकि टेस्ट भी वो अचीव कर पाया हूँ मैं अभी. जैसे अभी रिसेंटली मैंने सोया चाप बनाया था, तो सोया चाप में जो मैदा जाता है उसकी जगह मैंने उसमें मिलेट फ्लोर यूज किया था, तो वो भी बहुत अच्छा बना था. अच्छा ये बताओ ध्रुवेन कि आपने बनाया, लोगों को कैसे कन्विंस किया कि आप ये मिलेट्स के प्रोडक्ट को यूज करिए और गेहूं या बाकी प्रोडक्ट्स को छोड़िए? जी मैंने उनको एक ओबेसिटी का चार्ट दिखाया था कि कौन सा फूड खाने से हम कितने ओबेस हो रहे हैं और उसमें शुगर कंटेंट क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, तो वो समझ गए थे बात. ध्रुवेन, एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ. आपको ये आइडिया आया कैसे? कैसे आपने सोचा कि मुझे मल्टी मिलेट फ्लोर बनाना चाहिए, और आपको क्या क्या सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से? जी तो अभी फ्यू मंथ्स बैक AICTE का एक इवेंट था, मिलेट्स और कंपटीशन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. तो मैं रिसर्च में पहले से ही कर रहा था, लेकिन अभी मुझे वो एक और बूस्ट भी मिल गया कि एक पर्पस भी मिल गया कि मुझे वो करना है उस तरीके से, इसलिए मैंने वो किया.
नहीं, अच्छा है, इट्स ए गुड इनिशिएटिव। एटलीस्ट मुझे अच्छी बात ये लगी कि यू स्टार्टेड विद मेकिंग पीपल कन्विंस कि इसमें मिलेट्स प्रोडक्ट में किस तरीके के न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, बाकी जो ग्रेन्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां हैं। उसे और एक और अच्छी बात, बिकॉज आपने कहा कि व्हाइट कलर करने की कोशिश करी, तो कई बार ये भी होगा कि नहीं ये तो बाजरा का आटा नहीं है या रागी का नहीं है, दे मे लाइक टू ईट इट। परसेप्शन बहुत परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। परसेप्शन को टैप किया, इसीलिए आपका प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल है। तो इसको आगे कहाँ ले जाने का प्लान है, मतलब किस तरीके से स्केल अप करना चाहते हैं ध्रुवेन? आगे मैं इसमें रेडी टू ईट में यूज करना चाहता हूँ। जैसे सोया चाप है, तो सोया चाप में सोया के साथ मैदा जाता है 30 to 40% प्रोपोर्शन में, तो उसके जगह मैं इसमें मिलेट फ्लोर डालना चाहता हूँ, मतलब वो पूरा ही न्यूट्रिशनल हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ध्रुवेन, आपका आइडिया हमें लगता है कि स्केलेबल भी बहुत है। आप एक रीजन में न रह के नेशनल लेवल पे भी इसको लेकर जा सकते हैं विद योर फ्लोर। इट कैन बी सोल्ड विद प्रॉपर ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मैम। तो इसी एस्पेक्ट में आगे बढ़ते हुए इसमें सपोर्ट सिस्टम भी है क्या कुछ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्टार्टअप्स को लेकर आते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं और स्टार्टअप्स लेकर आने के लिए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने, जैसे कि हमने बात की इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि मिलेट स्टार्टअप्स प्रमोट हो सके। जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ शर्मा जी ने भी कही, क्रिएटिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अगर हम मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है अवेयरनेस क्रिएट करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने में। इनफैक्ट काफ़ी फंड्स अलोकेट किए गए हैं अलग अलग बॉडीज़ को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो अलग अलग स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर सकें। इन्हीं में से एक इनिशिएटिव है न्यूट्री हब। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर है जिसे 2017 में इस्टेब्लिश किया गया। It is hosted by IAMR Hyderabad, ICAR and IMR, and it is funded by Department of Science and Technology, DST. इसका पर्पस है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर्स को और डिमांड जनरेट करने में हेल्प कर सके। अगर न्यूट्री हब के इंक्यूबेशन सेंटर में आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोडक्शन के लिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, स्टार्टअप फैसिलिटी, मेंटरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, ट्रेनिंग, मार्केट फैसिलिटेट कराना, कनेक्टिविटी बढ़ाना। इनफैक्ट इनके कई प्रोग्राम्स हैं, जैसे कई 1 डे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे अगर आपका स्टार्टअप रेडी है, हाउ टू मार्केट इट। उसके अलावा कई इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 weeks to 1 year, जिसमें वो बिल्कुल हैंड होल्ड करके स्टार्ट से आइडिया जनरेशन से मार्केट कनेक्टिविटी तक करने में हेल्प करते हैं। और मेंटोर्स, एक्सपर्ट्स काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को जो भी मिलेट्स के एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फाइनेंस फंडिंग लेने में भी बहुत हेल्प करते हैं। अलग अलग एरियाज में कहाँ पे जो भी स्टार्टअप इवेंट्स हो रहे हैं उनका एक्सेस देने में नेशनल न्यूट्री हब काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। थंजावुर में ये इंस्टीट्यूट है। ये भी मिलेट एंटरप्रेन्योर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेटिव मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको फंडिंग मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से। उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप। इट इज होस्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट. It provides a one-stop solution for creating successful ventures in agriculture and allied activities. It helps from ideation to full-scale commercialization with unique methodology. So this is also providing a lot of support to all the startups. Then there is an institution, CSIR, Central Food Technological Research Institute by Government of India. It is also developing a lot of technologies for a lot of innovative millet-based products. If you visit their website, you will be able to see a lot of technologies which are there in the website itself. And you can go through them, get your idea, maybe adapt some technology, take some funding from different institutions, and then
start your millet-based business? In fact, last year, CSIR had organized a series of programs that was one lab, one product kind of one lab, 1 week, one lab. That was the program. Under that scheme, this Institute of Central Food Technological Research Institute, they had organized a special program on millet-based startups. And during that millet-based startups, they had launched 8 new products. New products. Those all were made from the millets. Those were including, like I would like to tell you, finger millet upma mix kind of thing, idli mix millet based, and then rava idli mix, and the different kind of things purely made of the millets. And these are very innovative products which we were talking about them. And institute under CSIR like this, when they are working, it means they are also trying to encourage. And similarly, there was another initiative by the Government of India last year. In fact, this year it was the last date on 31st January 2024. That was the Millet Startup and Innovation Challenge, because the Government of India has also initiated this initiative, and it was open to everybody. I think our student Dhruvin also had applied under that scheme for that purpose. So government is also promoting this startup and innovation through different kind of challenges, contests, and other ways. And second thing, this year of International Year of Millets, under that scheme also a lot of such kind of innovation startup are being promoted. In fact, one more thing, that government is also offering production-linked incentive for farmers and for the value-added products. So if the packaged and branded products, they have more than 15% of millets by weight, volume in product composition, they are also eligible for the incentives. It's a good thing. And I understand this is from the year 2022 to 2027, and there are around 800 crores for earmarked for this scheme itself. Yes. I think money is not the problem as far as government is concerned at the present moment. The need is to come up with new and innovative ideas. Because you cannot go by the kind of a traditional thing, but we'll have to find out the new ideas also. But important thing will be if we could blend the traditional knowledge, traditional practices with the new innovative ideas, then I think it will give to a different kind of new innovation in a startup. So that is required. Absolutely, because market penetration is a major challenge. Because as we have been discussing, it is very difficult to convince everyone to consume millets, to shift to millet-based diets. In fact, when I talk to a lot of people, they either believe in rice or wheat or totally millets. And that is where I tell them that you have to diversify your diet. You have to include millets because diversity is good for our gut, is good for our stomach. And that's why these startups will have to, innovate in such a way that they are able to relate to people. Now, in fact, there is a change in mindset. People are now going to the local atta chakki, and there they are asking to mix some ragi or jowar, bajra in the wheat flour. Yes. So that kind of change is already there. Change is it already needs there, to be yes. further boosted. We have to increase the magnitude. Yes, ma'am. maybe. That is required. When we look at the government support, how they are encouraging this, the scheme that you mentioned, I would like to add to that the objective of the scheme here is to encourage the use of millets in ready-to-eat and ready-to-cook products and incentivize them under this scheme to increase the use of millets per se in food products and promote the value addition. So even the government is emphasizing this thing. In fact, there is an institute, Indian Institute of Millets Research, IMR. especially for that purpose. Yes. And their focus is now to do kind of a value addition in the millet grains, and what kind of value addition they can do, how they can make it useful for the people, so that the people who are coming up with innovative ideas, startup, they could use those products. And different kind of different variety of new seeds are also being produced for that purpose.
the focus is on increasing the sale both in the domestic market and also in the international market. Yes. So we have learned about the various funding opportunities which are there. So would you like to add something to this? Yes, absolutely. I want to talk about some funding support which is provided to the startups. For example, there is Rashtriya Krishi Vikas Yojana, RKVY. It's a remunerative approach for agriculture and allied sector rejuvenation, Raftar. Then there is N-Grain Seed Support Funding Program that provides grants up to rupees 25 lakh for early stage startups with a minimum viable product in the market. So here the requirement is that your product should be minimum viable. The other program is NEST, N-E-S-T. It's an agri-entrepreneurship program which provides grants up to rupees 5 lakhs. IMR's NutriHub has in fact incubated 175 plus startup facilities, grants to the tune of rupees 3.42 crores to at least 40 startups. So funding is there, like we have been discussing. Funding is not a problem. The only requirement is that you have to be ready to come up with some innovative idea for your startup. What do you say? And also a good business plan for the startup. Yes. Because only idea will not help you. Yes, absolutely. If you are having very innovative idea but it is not having a proper business plan or revenue model, then I think it will not work. So you should work out a proper business plan, and then how you will initiate it and further scale it up, and then will reach out to the people. Those all aspects should be covered in that. Absolutely. So that is very much required So in this. what are the skills which are required for starting a business or enterprise in millets? Firstly, like every business, there are some skills that are required. But if you want to start up in millet, a very important thing is you must acquire some knowledge of millets. आपको ये एक्वायर करना होगा कि डिफरेंट मिलेट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ब्लेंड कर सकते हैं. जैसे आपने कॉल में हमारे स्टूडेंट से सुना कि he tried to come up with the right mix so that it can be used for various purposes. So थोड़ी सी आपको नॉलेज मिलेट्स के बारे में, आपको मिलेट्स के बारे में जानना, क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे उन्हें यूज किया जा सकता है, क्या उनका टेस्ट है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, जैसे कि किसी भी स्टार्टअप में ज़रूरत है, आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए. आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा कि क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, उसको कैसे अपना प्लान बना सकते हैं और उसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं. देन यू मस्ट हैव दैट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट विद यू, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क टेकिंग. क्या आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं? क्या आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके एक राइट डिसीजन ले सकते हैं? उसके बाद आपके पास एक अच्छा आइडिया भी है, आप में बहुत एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी हैं, बट व्हाट अबाउट योर मार्केट स्किल्स? क्या आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं? क्या आप मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हैं? क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या लोगों को चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और क्या उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मार्केटिंग स्किल्स के अलावा आप फंडिंग कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे अपने कॉस्ट मैनेज करेंगे, क्या आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? नेटवर्किंग. मिलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको रॉ मटेरियल सोर्स करना पड़ेगा, तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपको देखना पड़ेगा कि आप रॉ मटेरियल अरेंज कर सकें, आप सप्लायर्स से कनेक्ट बिठा सकें. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. एक बिजनेस करने में आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. क्या आप में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं? अगर नहीं तो आप डेवलप भी कर सकते हैं, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. उसके अलावा पैशन एंड कमिटमेंट जो बहुत रिक्वायर्ड है किसी भी बिजनेस के लिए. रेगुलेटरी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप एक एग्री बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट की क्या रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा. अल्टीमेटली कंटिन्यूअस लर्निंग. मिलेट एक ऐसा फील्ड है जो फॉर एवर ग्रोइंग है. अभी बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं और बहुत सारी इनोवेशंस बाकी हैं. बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपको उनका भी ट्रैक रखना पड़ेगा. बाकी शर्मा सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स को हाईलाइट किया है और ये बहुत ज़रूरी है. जब अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं
पर्टिकुलरली जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज देर आर वेराइटी ऑफ मिलेट्स। कौन सी मिलेट्स पे आप काम करना चाहते हैं और किस आपका जो कंज्यूमर है या टारगेट ग्रुप है वो कौन है। अगर आप एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाह रहे हैं तो उसका एक अलग तरीके का आपको एक सेट ऑफ स्किल्स या सेट ऑफ नॉलेज की जरूरत है। अगर आप इसको जनरल एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ जो ट्रेडिशनल फ्लोर या ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ आपको अलग तरीके से एक प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। एंड दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको लोगों तक पहुंचना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मिलेट बेस्ड स्टार्टअप्स में, यू विल हैव टू हैव ए स्किल टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल। उनको आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे, उसके लिए आपने जो डॉक्टर विजेता ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि यू शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द ingredients or the what we can say the nutritious value of each and every grain, every millet। उसी के हिसाब से आप उनको बता पाएंगे कि आपके लिए ये मिलेट सुटेबल है, ये नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट इज फॉर यू शुड गो फॉर दैट। सो दैट स्किल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। टू ऐड टू दिस, अगर प्रोडक्ट डेवलप करना है तो फिर उसको प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है, वो प्रोसेसिंग की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले कहा कि तो मैं ये कहूंगा कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कहूंगा कि जैसे अभी हमने जो हाईलाइट किए थे कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ इनोवेशन इन स्टार्टअप, उनमें से आपको एक या दो को फोकस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कवर ऑल द एरियाज इन वन गो। आपको एक या दो, अगर आप प्रोसेसिंग के फील्ड में जा रहे हैं, वैल्यू एडिशन के फील्ड में जा रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं, या पैकेजिंग के फील्ड में जा रहे हैं, तो एज फार एज स्टार्टअप इज कंसर्न यू विल हैव टू फोकस ऑन। बाकी की एक सब्सिडरी काइंड ऑफ पेरिफेरियल आपको सपोर्ट लेने की जरूरत है, बट फोकस एरिया आपका एक या दो ही रहेगा। और कोई भी एरिया ले उसके लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसी को वाइंड अप करने से पहले ब्रीफली अगर आप कुछ चैलेंजेस हाईलाइट करना चाहें जो कि एंटरप्रेन्योर्स फेस कर सकते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ते समय, कुछ चैलेंजेस जो हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाने की जरूरत है। वी विल हैव टू मैनेज द रिक्वायरमेंट ऑफ मिलेट्स। एंड सेकंड जो है उसको प्रॉपरली प्रोसेस करना और वैल्यू एडिशन करना, दीज आर ऑल चैलेंजेस। एंड again and again I am highlighting the changing the perception of the people, mindset of the people, and making it cost effective. These are the very important challenges which are सबसे ज़्यादा important aspect ये भी रहेगा कि whatever you are producing that should be marketable, that should be brought to the market. ये बहुत ज़रूरी है। So this brings us to the end of this session. We had an interesting conversation with our two experts. So before winding up, we would like to thank our viewers and our experts, Dr. O.P. Sharma and Dr. Vijeta Banwari, who joined us for this session. So thank you once again. Thank you.